Dear students, today we are going to start the paper spreadsheet part of Feb March 2024, variants 31. So we go to spreadsheet part. So as we are seeing here, the file that is given to us is distance and calc m24. हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करेंसी सिंबल जो है एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो उसमें एक यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है TZS करेंसी चूज करनी है टैंजानियन शिलिंग्स को. So first of all I am going to open these two files in my work area folder and copy here and save this. I just open the distance file and examine it. In this file you can see some columns, camp code, camp name and launch sites, and in our calculation file here we see this file is as this. I am going to just save this file with the name, with your center number and candidate number. Simply I click on save as, and in my work area on the desktop work area, as given file name is calculate underscore pk262, the center number, and then give the candidate number and choose Excel workbook and save it. And our other files also I copy here from distance to our work area. Now we start our working on this paper. So we have to create a format like this. A to C we have to merge and center, 18 black points font, and color is blue background. So simply just select A to C, click merge and center, 18 point and dark light blue color in the background. So simply Control S, save this file, and further you can see this is in center, this is right side, left side. So you check here, and I just center and middle, and other things are on the right side, and miles are already in left side, cost is in right side. So just I align the data. Now I am going to read. We have to give the header and footer, name, center number, candidate number in the right side. So click on insert header and footer, and in the right you just type your name, comma, center number, and comma your candidate number, and simply just click here to go to normal. Now you can see Control plus P, your center, your header and footer is here. If you, I just put Khan N, okay, so close here. Next thing is our first formula that we are going to place 5 marks. We have to place a formula in cell B46, look up the name of lodge or camp using the camp code, and external file distance.csv. अब देखें यहाँ पर हमने जो सेव करना है दैट इज कैंप कोड को हमने सर्च करना है अपनी एक्सटर्नल फाइल में से, और यहाँ पे डाटा लेके आना है इसके अंदर कैंप नेम के अंदर. देखिए कैंप कोड को हमने सर्च करना है, कैंप नेम के अंदर हमने डाटा लेके आना है फ्रॉम आवर डिस्टेंस फाइल. तो मैं क्योंकि इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया है उस फाइल को मैं यहाँ से वर्क एरिया से ओपन कर लेता हूँ सिंपली, ताकि हमारा पाथ सेम रहे. अब देखिए डाटा हमारा वर्टिकली है या हॉरिजेंटल, तो डाटा यहाँ पर आ रहा है वर्टिकल, कैंप कोड एंड कैंप नेम. So I just use VLOOKUP, and VLOOKUP what lookup क्या lookup करे,
कैंप कोड को लुकअप करें, सो आई यूज B4 here. टेबल अरे Alt tab प्रेस करें, you just press the Alt tab button and select the camp name and camp code first two columns and comma. Now what we have to look, हमें कैंप नेम उठाना है, तो ये हमारा कॉलम नंबर 2 में से आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 टेक्स्ट हमारी 2 होगी, कॉमा 0, ताकि हमारा कोई मैचिंग ना हो। देखिए कैंप कोड हमारा 17 पे ये आ चुका है, सो वी जस्ट चेक इट इन 17, द नेम इज Mara Angry Camp, so it is okay. So this was the first formula that we use. In the second formula, we just we have to put in the B7, look up the distance in miles. Miles में हमने look up करना है distance को, and lodge and camp using the launch site. देखिए lodge and camp भी उसमें involve हो रहा है और launch site भी। कि अब देखें यहाँ पर हमारे पास launch site ऊपर दी गई है, इस साइड पे हमारे पास ABCDE और कैंप हमें कोड इस साइड पे दिया गया है। यहाँ पर जो बता रहा है कि ई को 17 से मैच करें, और फिर वो उसके सामने जो, अब देखिए ई अगर है, ई में 17 हमारे पास यहाँ पर 17 नंबर ये आ रहा है हमारा एग्री कैंप, और यहाँ पर 27.8, मतलब हमने दो चीजों को लुकअप करना है। और देखें डाटा हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह से, तो हम इसमें देखें कि ये that is horizontal data, so just we use HLOOKUP, but so we start this formula HLOOKUP, but क्या लुकअप करें, e को लुकअप करें, कहाँ से लुकअप करें, फ्रॉम अ टेबल अरे ऑफ A to B27 J27, सो जस्ट अब इंडेक्स क्या होना चाहिए, अब देखें इंडेक्स हमारा क्या है 17, यहाँ से ये है, बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पे गौर करें तो 17 यहाँ पर 14 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो दो जो हमारे पास हैं, दो रॉस वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे 17 नहीं लिख सकते, ठीक है, 17 नहीं लिख सकते। आप इसको वेरिएबल डाटा B4 लिखेंगे और +2 कर देंगे। अब ये +2 क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास 2 रॉज एक्स्ट्रा है, और वो जो रॉ इंडेक्स नंबर है वो कैंप कोड जो भी हम ले रहे हैं उसमें 2 प्लस करके फिर आएगा हमारा। अगर हम ये +2 नहीं करेंगे तो वो 15 नंबर वाले को, अगर यहाँ पे 17 शो हो रहा है तो वो 15 वाले का हमें शो करवा देगा, कॉमा 0 एंड जस्ट ब्रैकेट क्लोज। So now you test this. This is our 27.8 and here is the 17 code. So दोनों साइडों से मैच करना है, और इसमें आपने चीज को बड़ा यहाँ से देखना है कि +2, कुछ पेपर्स में +1 करना पड़ जाता है, कुछ में +2, कुछ में नहीं करना पड़ता। आपने रॉ इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पे अच्छी तरह से फोकस करना होता है। So driving time we are going to calculate. Next formula is 2 marks, and this is easy. Distance multiply 60 over speed, and speed is given here 20 miles per hour. So distance we find here, so simply distance multiply by 60 and divided by 20, distance multiplied by 60 divided by speed. So this is our driving time in minutes. Now we are going to calculate the cost. So place the formula in B10 and calculate the cost. अब calculate cost कैसे करेंगे, cost is equal to driving time rounded by nearest hour. अब देखिए यहाँ पे round का फार्मूला हमारा आ जाएगा, round we use round formula here, in hours multiply by 2200 shillings, यानी कि उसने मतलब यहाँ पर दे दिया कि 1 आवर का 2200 शिलिंग मिलेगा, प्लस द डिस्टेंस इज माइल, जितना भी डिस्टेंस है माइल्स का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 800 शिलिंग्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ड्राइविंग टाइम को आप राउंड करेंगे, राउंड नंबर ड्राइविंग टाइम नियरेस्ट 0 पे राउंड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2200 प्लस इसमें क्या कर रहे हैं हम,
आवर्स टाइम ले रहे हैं और टाइम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 800 के साथ। देखिए ये अपने बड़े गौर से देखना है कि राउंडेड आवर्स को मल्टीप्लाई किया 2200 के साथ। ठीक, यहाँ पर ही हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब बस आप इसको एंटर करेंगे। अब हमने करना क्या है, क्लास कम अप्लाई द अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग उसने पहले हमें दे दी थी कि करेंसी सिंबल में हमें TZS को ऐड करना है यहाँ पर, और हम 2 decimal places. So simply just right click format cells and currency, select the currency, और यहाँ से आपने TZS करेंसी को चूज कर लेना है। 2 decimal places already, यहाँ पे ये हो गया। अब देखें ये थोड़ा सा आपका इसको सेंटर कर दें तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपने बस सेंटर कर दिया, हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट है। Now we have to print the both in values and in without values. With values आपने सिंगल पेज पे प्रिंट आउट लेना है, फुली विजिबल। और एक बात का ख्याल रखना है कि कॉलम एंड रॉ हेडिंग डिस्प्ले हों। बट इन फार्मूला, जब फार्मूला का प्रिंट लेना है तो आपने लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे उसको प्रिंट लेना है। तो सिंपली आप पहले तो यहीं पे Ctrl+P प्रेस कर दें और पेज सेटअप मेक श्योर शीट पे आपका रॉ एंड कॉलम हेडिंग जो है ये ऑन होना चाहिए। तो ABC ये आपके कॉलम हेडिंग एंड 1 2 3 4 रॉ हेडिंग अपीयरिंग हियर। सो आपने पहले सिंपल जो प्रिंट लेना है वो पोर्ट्रेट पे ले लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक ऑन फार्मूला टैब, शो फार्मूला, डबल क्लिक हेयर, डबल क्लिक हेयर। अब ये डबल क्लिक इसलिए करना है कि आपको सारा कंटेंट मुकम्मल शो हो, कोई भी चीज मिस ना हो रही हो। तो आपने Ctrl+P प्रेस करना है और इसको प्रिंट ले लेना है लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे। जस्ट यू सेलेक्ट द प्रिंटर and click on print button. So this was the today paper. I hope you can learn from this paper and now you try at home. In next video I'll solve another paper. So keep contact with me. If any question you can contact me anytime. Thank you very much.